इज़ योर सेकेंड क्लास। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल, सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड सब लोग इन्जॉय भी बहुत कर रहे हैं, राइट? So welcome back to the video class at Little Indian School at home, and this is Poonam Bhati from Little Indian School. So as you know that I am computer teacher. Every day you would be attended video classes and learn that topic which I discuss in this video class, right? So students, make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the video class. So please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Student, I hope you all are ready. Yes, you are very good students. So student, let's get start. Today we are going to cover the day 8 for your chapter number 4. आज हम डे 8 यानी कि दिन 8 आपका कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 के लिए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्ट विद डे 8 फॉर चैप्टर नंबर 4. स्टूडेंट, this is your chapter number 4D and your chapter name is working of a computer. Your chapter name is working of a computer. In this chapter, your computer textbook has been covered following topics like input, processing, output cycle, like working of a computer and the devices. In the last video class, we already covered the input devices and the processing device. So let's learn more about the processing device. Students, this is your computer textbook page, and in this page your computer textbook has been covered three topics for your chapter number 4. आपके चैप्टर नंबर 4 के लिए आपकी जो कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है उसमें 3 टॉपिक कवर किए हुए हैं. फर्स्ट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, जिसे हम IPO साइकिल भी बोलते हैं. सेकंड इज वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, जिसे हम कंप्यूटर की वर्किंग बोलते हैं. एंड द थर्ड टॉपिक इज डिवाइसेस, like the input devices, output devices, processing devices and the storage devices. So we already covered the first device completely, like the input device, right? Now the next device, processing device, we already discussed start the processing device in the last video classes. Now in this video class we finished the processing device like CPU, right? What is the processing device? CPU. So in this video we are going to cover the CPU and the storage device, right? So student, in the last video class we already covered the processing device. What is processing? Working on inputs or data is called the processing. Okay, so CPU is the processing device of a computer and it has a processor that processes the input. Actually, processing devices are those devices which is used to process your input on your computer, right? So basically on your computer, CPU is the process part of your computer, ठीक है? और CPU is the processing device. And what is CPU? CPU is the processor that processes the input. So this is, in this slide I mentioned the 3 pictures. Input CPU front, CPU inside and CPU back. You already seen that कि CPU front आपका look like that, CPU back आपका इस तरीके से दिखता है, लेकिन जो CPU के inside में होता है वो आपका इस तरीके से दिखता है. So let's learn about the CPU. What is CPU? So student, this is the CPU. You know very well. I already see the picture of the CPU in the last slide. So CPU stands for Central Processing Unit. CPU stands for Central Processing Unit. It is the most important part of the computer because it is the very important part because all processing are done by the CPU. So the full form of CPU is the Central Processing Unit, which is the most important part of a computer. Now CPU has the following main features. CPU के कुछ features होते हैं, तो let's learn about these features. First feature is
इट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. ठीक है, वाई इट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? बिकॉज all processing are stored on your CPU. ठीक है, सो CPU के अंदर जब सारा का सारा डेटा स्टोर होगा और सारा डेटा हम CPU करेगा, तो CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे. बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल इन ए ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो आप जो भी लर्न करते हो वो कहाँ जाता है? आपके ब्रेन के अंदर. आप कुछ भी अगर खाना खाना है या फिर आपको होमवर्क करना है, तो वो कौन इंस्ट्रक्शन करता है? आपको ब्रेन. ठीक है, तो आपका जो बेसिकली आपकी हो गई ब्रेन. ठीक है, तो इसी तरीके से ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन CPU हो गया. लाइक इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन. सेकेंड फीचर इज इट स्टोर्स information. Right? How CPU store information? Because student, for example, in a human body, each and everything are stored in the brain. Okay, and CPU is the brain of computer. तो कंप्यूटर का भी जो भी वर्क होगा, जो आप वर्क करेंगे, वो सारा वर्क कहाँ जाके स्टोर होगा? आपकी CPU के अंदर. अगर आप इनपुट भी दे रहे हैं तो वो भी जाके कहाँ स्टोर हो रहा है? आपके CPU के अंदर. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल, अगर आपके ब्रेन के अंदर सारा कुछ स्टोर होता है. आप कुछ भी लर्न करते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होता है? ब्रेन के अंदर. आप कोई प्लेस देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो सब चीज़ कहाँ स्टोर होती है? आपके ब्रेन के अंदर. अब आपके कंप्यूटर के अंदर ब्रेन कौन है? CPU. तो जो भी आप वर्क करेंगे वो सारा कहाँ स्टोर होगा? आपके CPU के अंदर. सो वी कैन से डैट इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन. नाउ थर्ड इज इट मेक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. ठीक है, इट मेक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को भी बना सकता है. ठीक है, लास्ट फीचर इज it controls all the other parts of a computer. Suppose for example, if you want to attach the speaker on your computer, then CPU control the speaker for your computer. If you want to install your printer on your computer, in your computer, तो CPU क्या करेगा? प्रिंटर को कंट्रोल करके रखेगा. ठीक है, तो these are the main features which you have to follow. And you have to say that CPU is the important part of a computer. Have you write it? This is not the part of book. ये बुक की पार्ट नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड्स आपके लिए दी हैं सो डैट आपको पता चले कि CPU हमारा ये काम करता है, इसके फीचर्स ये होते हैं. ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है बेटा जी, बुक में इंक्लूड नहीं है, ये आपको खुद से मैंने बना के दिया है. राइट? Now the next topic for your computer textbook is storage device. Storage devices. So these three pictures are you seen that pen drive, CD, DVD and hard disk. इनको देख के क्या लग रहा है आपको? पेन ड्राइव में आप क्या करते हैं? यस, अपने डेटा को सेव करते हैं. तो सेव का मतलब होता है स्टोर करके रखना. ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस आर दोज डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर योर इंफॉर्मेशन परमानेंटली. ठीक है, तो ठीक है, लाइक CD, DVD भी आप देखते होंगे. सीडीज़ में मूवीज़ की सीडीज़ होती हैं, या आपकी स्टडी मटेरियल आपके CD में स्टोर कर सकते हो. हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में अटैच्ड होती है, जो भी आप वर्क करते हैं आपकी हार्ड डिस्क में जाकर वो स्टोर होता है, CPU के अंदर अटैच्ड रहती है. तो दीज थ्री आर द स्टोरेज डिवाइसेस. दे आर लॉट्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, तो लेट्स लर्न मोर अबाउट द स्टोरेज डिवाइस. Storage device is a device that stores data to be used later. Storage device आपका वो डिवाइस होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है, जब हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूज़ करने के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए भी रख सकता है. फर्दर अगर हम उसको रीयूज करें तो हम अपने स्टोरेज डिवाइस में से अपने डेटा को कलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, उनसे यूज़ कर सकते हैं. राइट? सो स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस दैट स्टोर डेटा टू बी यूज्ड लेटर.
ए हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। अब अगर हम कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होती है बेटा जी? हार्ड डिस्क। दिस इज ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। दिस इज द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है। और आप फर्दर आगे बाद में भी इन फ्यूचर अगर आपको अपना डेटा यूज़ करना है तो आप हार्ड डिस्क में से अपने डेटा को ओपन कर सकते हैं और अपने डेटा को स्टोर डेटा को रीयूज़ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ हार्ड डिस्क। सो इसलिए हमने बोला है हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर, राइट? हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, राइट? इट इज इनसाइड द सीपीयू। अब ये हार्ड डिस्क कहाँ होती है? ये क्या ऐसी कंप्यूटर जैसे कीबोर्ड दिख रहा है, जैसे आपका माउस दिख रहा है, क्या हार्ड डिस्क भी आपको ऐसी दिखती है बाहर ओपन में? क्या हार्ड डिस्क भी आपको लाइक कीबोर्ड और माउस की तरह ओपन में दिखती है? नो, बिकॉज हार्ड डिस्क इज इनसाइड द सीपीयू। क्योंकि हार्ड डिस्क आपकी सीपीयू के अंदर होती है, अटैच्ड होती है सीपीयू के अंदर। अगर सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क नहीं होगी तो यू कांट स्टोर योर डेटा परमानेंटली ऑन योर कंप्यूटर, राइट? So it is inside the CPU. It stores the information we feed to a computer. वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जो कंप्यूटर में हम फीड करते हैं। Get it? We can also store information outside a computer in a CD, DVD or a pen drive. हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके भी रख सकते हैं सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव के अंदर। गेट इट? तो आपने देख लिया होगा, दिस इज द सीडी, इट इज़ ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस। दिस इज़ द पेन ड्राइव, इट इज़ ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी ये स्टोरेज डिवाइस डैमेज ना हो जाए। अगर डैमेज हो गई तो ऑब्वियसली फिर तो आपका डेटा हमेशा के लिए चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो आपको उनको सेफली रखना है, सेफली यूज़ करना है। सो वी कैन ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन आउटसाइड ए कंप्यूटर इन ए सीडी एंड डीवीडी। हम कंप्यूटर से बाहर भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव, कंप्यूटर में हमने यूएसबी पोर्ट में पेन ड्राइव को अटैच किया और अपने कंप्यूटर से अपने पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर कर लिया। ठीक है, गेट इट माई पॉइंट स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज डिवाइस एंड CPU. नाउ इट्स टाइम टू होमवर्क. यू हैव टू लर्न अबाउट द CPUs and the storage device, right? So student, stay home, stay safe. Okay, now stay healthy. Have a nice day. Bye bye.